Content marketing is make your presence of your word in such a way that it create a impact on your target audience. Before we start a session for today, let me first introduce about a Fixed Foundation and let me first share a slide with you. Fixed Foundation. Fixed Foundation is actually a upshot of a Fixed Private Limited, a digital solution company which works on 4Ds: data development, design, and so the main behind our Fixed Foundation or Fixed Private Limited is to spread the knowledge, in-depth knowledge and awareness about the various topics through our professionals so that we can bridge a gap between the academic and the professional education. So I would like to hand over this session to Mr. Tushar Mangal, who is a content marketing strategy and analyst, and who is going to lead this session with the various options we can use in a content writing and a content descriptions. So without wasting time, over to you, sir. Thank you so much, Komal. I hope everybody is able to hear me clearly. Welcome you all. I can see that many of you have joined us today to discuss this very important topic of basics of content writing. Before I begin, I would like to continue from where Komal just told us about the quote from Bill Gates, that content is the king. In marketing parlance, in marketing field, content is one of the most important aspects or one of the most important ingredients of any marketing campaign. So crucial, very important, and something that is really essential for any marketing or a business campaign. And as we know, marketing campaigns, advertising campaigns, and that is how any business runs. Any business or an organization has to run on a marketing or an advertising campaign to amplify their reach. I see someone has raised her hand. That someone? No. Okay, it's fine. Before I begin, how many of us are already working in the content field? If you want, you can write in the comment section. There is a chat box here. How many of you are working as a content writer or a content professional, and how much years of experience do you have if you are doing it? Is there anyone here? All right. Okay. So no one is currently working in the content field, I see, and probably we are trying to learn something about the profession or about the field, and that's why we are all here. That's what I'm assuming. Let me check chat box. Isha says that she's not directly involved in the content field. All right. So let me begin by giving you a brief background in the sense that what content is. Can anyone in the audience here can help me with what do we understand about the word content and what is content writing? You can write in the chat box if you want. If you want to raise your hand, unmute yourself and speak, you can do that as well. Anyone? All right. Okay, let me then go about it. See, what is content? Content is a form of communication, right? Isha is absolutely right here. Content is a form of communication. That's right. So content is anything, any message, any communication, any message, any letter, any word that goes out, right? Jyoti, you are absolutely right. It's a kind of an information that goes out is content. Content application is present in many formats, in many places, and content can be anything from, let's say, a social media post,
an email, a blog, an article. Um, Even if suppose Komal was giving an introduction and she showed us a slide from for Fixit Foundation and what Fixit is all about. Even that is a form of content. So content is any information, any message, any text format that conveys a message that says something about what we are discussing or what the organization is going to tell us is a content. In a professional way, in a professional format, we say that, a kind of a message that the organization or the company wants to send across to its audience, its users, its clients, or its stakeholders. So that is what content is. There's a lot of confusion that I see in, people try to understand what content writing is, but they don't understand what content incorporates. This is very important to understand. Content is not just, मैं आया और एक आर्टिकल लिखा 200-400 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा एंड टक 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 एंड दैट इज डन. वो टाइपिंग है, वो कंटेंट नहीं है. वो टाइपिंग का काम है और वो भी पार्ट ऑफ कंटेंट ही है. But that is not solely the content field. Content will, you are writing a blog, article, like I said, even a press release, something that you read in your newspapers, even so for example, you are watching a video, a 2-minute video or a 3-minute video. Let's say I'm giving you a video of how to use a mobile phone. Right, Tushar, you are absolutely right. Even writing books is content, right? So even when I'm talking about video, the video ka jo content hai, that is also a content writer will be writing that content. We will have a person who is good in content field, who is a professional content field, is going to write that text for the video. Even जब हम video upload करेंगे, video का description नीचे लिखेंगे कि okay, what is this video all about? That is also content. That also comes under the purview of a content professional. So all that is content. And now with, I would say 9, 10, 15 years ago, content was all about, writing articles, writing a lot of blogs and articles. But in the past few years, there has been a remarkable change in the kind of consumption of content as well, and application of content as well, because अब बहुत सारा वो हो गया है, videos आ गए हैं. We have got a lot of work that is coming for social media. जैसे मैंने आपको कहा कि अभी Facebook का post है, Instagram पे कोई post डालना है. So Instagram में अगर मैं post डाल रहा हूँ, the image is not is content. Even the image, the visual is the content. उसका नीचे जो मेरा डिस्क्रिप्शन जाएगा, व्हाट इज द कैप्शन दैट आई एम व्हाट कैप्शन क्या जाएगा, इवन दैट इज अ कंटेंट. तो अब इसका जो एप्लीकेशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है. जैसे तुषार ने भी सही कहा यहाँ पे कि नाउ इवन राइटिंग बुक्स, राइटिंग मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स. हमारे पास हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाना है. ओके फाइन, हाउ डू वी डू अ वेबिनार? आई वांट टू डू अ वेबिनार, आई वांट एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर इट. तो that also comes under the purview of the content professional. So I'm going to now begin by saying that how many people have joined us? Nice, 14 people have joined us here. So let me begin by telling you a very basic kind of a thing that जो मेरे को बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि ओके हाउ डू वी बिगिन. बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कंटेंट राइटिंग करना है, वी आल्सो वांट टू डू इट, बट how to go about it, इसको शुरू कैसे करेंगे, is it the right medium for me, क्या मेरे लिए सही है, क्या प्रोफेशन में कुछ अच्छा है. तो ये सारी चीजें हम थोड़ी थोड़ी देर में एक एक करके कवर करेंगे. and going to if go in a flow, but if you have any doubts, बीच में कहीं पे भी किसी को कुछ पूछना है, you can always write something on the chat box. We are going to have an interactive session here. हर कोई अपना अपना जो भी anything that you have on your mind, let us know in the chat box. Keep writing. I am following it here. अगर मैं थोड़ा फास्ट चला गया और आप कह रहे हो कि नहीं थोड़ा स्लो हो जाओ, भाग रहे हो आप आगे, तो फिर मेरे को रोक लेना पीछे से. आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हो. So let me begin. How do I start content writing? And अब ये समझ में आ गया, अच्छा ठीक है content writing में होता क्या क्या है, आपने बता दिया कि ये सब चीजें हैं, पर हमें शुरू कहाँ से करेंगे और ये क्या
पर मैं कहता हूं कि शुरू करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है, you have to understand that is content writing the right profession or a vocation for you or not, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग शुरू करते हैं लेकिन बाद में वो रह जाता है कि नहीं नहीं मजा नहीं आया, चैलेंजेस आते हैं, मुश्किल आती है। इट्स नॉट वेरी इजी टू चर्न आउट सो मेनी आइडियाज, इतना कंटेंट करना। तो ये क्या मेरे लिए सही है कंटेंट फील्ड कि नहीं, इज इट द राइट फील्ड फॉर मी और नॉट। इसके अंदर दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है, राइटिंग एज अ हॉबी एंड राइटिंग एज अ प्रोफेशन आर टू वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। जब मैंने कंटेंट राइटिंग शुरू की थी, आई स्टार्टेड इट एज अ हॉबी, आई टुक माई हॉबी इन टू अ नेक्स्ट स्टेज एंड स्टार्टेड अर्निंग मनी आउट ऑफ इट। मुझे शौक था वही बुक्स वगैरह लिखने का और आगे हमने लेकिन मिला। ये बहुत सारे आप बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे थिंकर्स आपको मिलेंगे जो कि आपको कहेंगे कि अब हमेशा वो वाला काम करना चाहिए जो आपकी हॉबी हो, जिससे आपको क्योंकि हॉबी जो होती है हमारी, ऑब्वियसली जो जिसकी जो हॉबी होती है उसको वो काम पसंद होता है, राइट। अगर किसी की हॉबी स्टिचिंग है तो उसको स्टिचिंग पसंद है, किसी की हॉबी राइटिंग है तो उसको राइटिंग करना पसंद है, तभी उसकी हॉबी है, राइट। तो वो प्रोफेशन करना, कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो प्रोफेशन परस्यू करना हमेशा एक एडवांटेजियस होता है, क्योंकि अर्न मनी फ्रॉम समथिंग दैट यू लव डूइंग, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। बट कंटेंट के अंदर ये समझना बहुत जरूरी है कि जब मैं राइटिंग कर रहा हूँ अपने लिए या कर रहा हूँ किसी क्लाइंट के लिए या अपनी कंपनी के लिए, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। दैट इज नॉट, बस कहना इजी है कि हॉबी के लिए करते थे और हम कंटेंट में आ गए, इट इज नॉट एन इजी बॉल गेम। क्यों, वो भी बता देता हूँ। जब आप बुक लिख रहे हैं, मैं पोएम लिख रहा हूँ, पोएम है, बाहर मौसम है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आदमी बैठ के ऐसे लिख रहा है कि हाँ भाई पत्ते गीले गीले, खुशबू बढ़िया अच्छी सी आ रही है, बहुत बढ़िया तूफान बारिश मौसम अच्छा लग रहा है, इट्स अ वेरी लाइट और अपना अपना पोएम लिखा है, शौक के लिए बंदे ने लिखा। कंटेंट जब मैं लिख रहा हूँ तो मेरे को क्लाइंट का ब्रीफ है, क्लाइंट को जैसा कंटेंट चाहिए वैसा लिखना है। वो नहीं चाहिए कि भाई हमें उस वक्त मूड कैसा है, अभी मौसम है तो मूड बना हुआ है लिख लिया, ऐसा नहीं होता है। you have to inculcate a discipline, you have to follow the guidelines, you have to follow whatever your client tells you, उसके हिसाब से तुम्हें कंटेंट लिखना होता है। Is it a very difficult field to go in? No, it is not difficult. उसमें कोई इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं है। क्या बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग वाला काम है? हाँ, मेहनत बहुत है। क्यों? क्योंकि जब कंटेंट राइटिंग हम लोग करते हैं, इसमें दिमाग भी बहुत सारा लगाना पड़ता है। You need a lot of concentration, you need a lot of focus, you need to do a lot of research. हमें कई कई टॉपिक्स आपके पास ऐसे आएंगे जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, जिसका कोई एबीसीडी नहीं पता है। मैं आपको बोलूं कि ओके लेट्स राइट अ 400 वर्ड्स आर्टिकल ऑन हाउ टू डू अ जूम वेबिनार, शायद आपको नहीं पता होगा, आपने कभी जूम वेबिनार कंडक्ट नहीं किया, हमें क्या पता भी जूम वेबिनार क्या होता है। हम तो बस विजिट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं, ऑन करते हैं, हो जाता है। उसमें क्या लिखे, रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब हम कंटेंट राइटिंग में आ रहे हैं, ये सब चीजें समझना जरूरी है कि खाली हॉबी को उसको करने का ट्रांसफॉर्म करना कि बस मेरी हॉबी है और मैं कंटेंट राइटर बन जाऊंगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। उसके लिए मेरे को बहुत सारा डेडिकेशन, फोकस और मेरे को बहुत सारा एक रिसर्च बेंट ऑफ माइंड चाहिए होगा, मुझे बहुत सारी कंसंट्रेशन चाहिए होगी और हार्ड वर्क भी रहेगा। ये आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। मैं नेक्स्ट स्टेज पे आ रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग अब शुरू कैसे करनी है। और अब हम मन बना लिया, हाँ नहीं लग रहा है भाई मेरे बस का है, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, आई वांट टू गिव इट अ शॉट, तो मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ। कंटेंट राइटिंग करने के लिए करना क्या क्या है, इसके अंदर आपको इसके अंदर सबसे पहले समझना होगा कि आप किस तरह का कंटेंट लिखना पसंद करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पसंद है जी बड़े लंबे लंबा कंटेंट लिखने का, जब हम एग्जाम में पेपर देते थे तो लंबा लंबा कंटेंट लिखते थे तो अच्छा लगता था, तो हम बुक्स लिखना चाहते हैं, तो आप बुक्स राइटर बन सकते हैं। कोई राइटर होता है जो कि बहुत शॉर्ट और क्रिस्प राइटिंग चाहिए होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी सोशल मीडिया या वीडियोस के लिए। अब वीडियो में आपको पता ही है कि मैं 500 वर्ड का तो बहुत बड़ा बड़ा मोटी मोटी किताबें तो लिख नहीं सकता हूँ, जो वीडियो बनानी है, वीडियो बनती है 1 2 4 मिनट की, वो यूट्यूब वीडियो इंस्ट्रक्शन की बनानी है। आप क्या वीडियो राइटिंग करना चाहते हैं तो आप उस एंगल में जा सकते हैं। आप अगर चाहें तो ब्लॉग राइटर बन सकते हैं, जिसके अंदर ब्लॉग्स लिखने होते हैं और
चाहे तो आर्टिकल्स लिख सकते हैं, चाहे तो आप रिसर्च राइटिंग में जा सकते हैं, चाहे तो आप एकेडमिक राइटिंग में जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा, बहुत तरह तरह का कंटेंट एप्लीकेशन है, बहुत तरह तरह का कंटेंट आ रहा है, हर जगह रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने कहाँ स्पेशलाइज करना है ये सब आपके ऊपर है। आप अपना देखो, आपको क्या अच्छा लग रहा है। जिसको ये चीज नहीं पता, अब ये भी आता है कि भाई मेरे को क्या पता मैं वीडियो में अच्छा हूँ कि नहीं अच्छा हूँ, मेरे को क्या पता, हो सकता है मैं सोशल मीडिया ज्यादा बेटर कर सकूं, हो सकता है मैं ब्लॉग राइटर ज्यादा अच्छा बन सकूं, ये भी हो सकता है मैं रिसर्च राइटर अच्छा बन जाऊं और एक रिसर्च रिपोर्ट्स जो आती है वो लिखूं, तो क्या अच्छा रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा बोझ लेने की जरूरत नहीं है। मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, आई ऑलवेज रिकमेंड टू एवरीवन दैट टू ट्राई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी एन एक्सपर्ट। अगर मुझे रिसर्च राइटिंग का मेरा प्रोफिशिएंसी नहीं भी है, एक बार ट्राई जरूर करके देखो, कई बार आपको क्लिक कर जाता है, कई बार नहीं क्लिक करता, अपॉर्चुनिटी पे है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप ट्राई करो। बट यस, साथ साथ में जब भी आप कंटेंट राइटिंग की फील्ड में मैं एंटर मार रहा हूँ, तो आपको एक पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई एम गुड एट, इसके अंदर मेरे को जाना है, इस फील्ड में मेरे को इस तरह का कंटेंट मुझे लिखना है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, ब्लॉग राइटिंग और ये जो आर्टिकल राइटिंग और रिसर्च राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग, ये सब चीजें फर्क फर्क क्या होती है और इनमें क्या क्या, मतलब फर्क इन द सेंस कि इनमें क्या क्या स्किल सेट में मेरे को डिफरेंस चाहिए या मुझे किस तरह का उसमें स्किल का डिफरेंस आता है। जो होते हैं हमारी बुक्स, जो हमारे होती है रिसर्च रिपोर्ट्स, जो हमारी होती है टेक्स्ट बुक्स, जो हमारे होते हैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, एकेडमिक राइटिंग, ये सब जो होता है कंटेंट, ये बहुत ज्यादा हैवी रिसर्च ओरिएंटेड होता है। इसमें बहुत सारे नंबर्स डालने पड़ते हैं और इसमें बहुत सारे हमें ग्राफ्स, स्टैटिस्टिक्स और ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वो लोग जिनका यहाँ पे स्किल सेट है, सपोज किसी का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होता है या फिर जिसका मैनेजमेंट का होता है या फिर जिसका जैसे स्किल सेट है, रिसर्च माइंडेड बनता है, वो लोग इस तरह की कंटेंट राइटिंग में जाना जाना पसंद करते हैं। जिन लोगों को शौक होता है छोटा कंटेंट लिखने का, एक लाइन में वो सारी बात कह देंगे, 2 लाइनों में उनको लगता है कि मैं सारा मैसेज कन्वे कर दूंगा, वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट बोलते हैं। वो सब चलता है वीडियोस में, सोशल मीडिया में, आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के कंटेंट्स के लिए। तो इमेजेस देखते हो आप, सुबह आपने अखबार खोल ली होगी, उसमें ऐड देखा होगा कि ये वाला डिटर्जेंट लीजिए, ये है बहुत बढ़िया डिटर्जेंट, या फिर मतलब दूध जैसा सफेद, फॉर एग्जांपल मैं पता नहीं है, जैसे दूध जैसा सफेदी लाएगा ये डिटर्जेंट, वो जो एक सेंटेंस में जो लिखा होता है या स्लोगन दिया होता है, वो किसी कंटेंट राइटर ने दिया होता है। तो उसके लिए एक स्किल सेट चाहिए होता है, राइट, कि आपको, आप एड बना रहे हो तो बहुत लंबा लंबा तो मैं नहीं लिख सकता ना एड के लिए। स्लोगन तो आपको, अगर मैं सपोज करो सॉरी, अगर मैं एक डिटर्जेंट की एड बना रहा हूँ, अब मैं इतना बड़ा तो नहीं ना 2-3 घंटे टाइप वाला इतना लंबा कंटेंट लिखूंगा, एड बनानी है कि भाई ये डिटर्जेंट बहुत अच्छा है, इसमें बहुत मजा आएगा, इसको कपड़े धोते हुए आपके हाथ एकदम कोमल कोमल रहेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे, आपके कपड़े चमकेंगे। इतना लंबा चौड़ा मैं शायद नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ऐड है, कस्टमर का इतना वो नहीं जाता है। वो जो कंटेंट भी जो लिखता है बंदा, वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है, एडवर्टाइजिंग के लिए यूज होता है, मार्केटिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद एक फॉर्म ऑफ कंटेंट आता है जो कि बहुत सारा काम निकलता है जिसका, वो है ब्लॉग राइटिंग, और एक होता है आर्टिकल राइटिंग। ब्लॉग और आर्टिकल राइटिंग हम कई लोग आप सुनेंगे, आप कई लोग आपको बताएंगे ओके दिस इज ब्लॉग राइटिंग, दिस इज आर्टिकल राइटिंग। द major difference between both of them is article writing is always a little formal in nature, it is more business like in nature। उसमें थोड़ा सा फॉर्मेलिटी हो गया और थोड़ा हमें ज्यादा स्ट्रेट रहना पड़ता है। Blog writing is more informal in nature, more like a diary kind of a format, and more of a interactive in nature than as compared to my article। ये दोनों में डिफरेंस होता है। दिस इज अ वेरी कॉमन फाइंड फॉर्म ऑफ कंटेंट, बिकॉज मार्केटिंग में इसका काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, काफी ज्यादा यूज होता है। सो ब्लॉग राइटिंग वुड बी फॉर एग्जांपल, ओके आज का मेरा दिन, जैसे हमारा डायरी फॉर्मेट होता है, राइट, आज का हमारा दिन, सो एक पिकनिक पे गए, ओके सो आई वेंट टू अ पिकनिक टुडे एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। सो if or for example I'm writing about picnics, right, so if you are looking to go out for picnic and these are the various options that you have,
आर्टिकल फॉर्मेट थोड़ा सा फॉर्मल में चला जाएगा। अगर मैं बात करूंगा पिकनिक की, ओके, so picnics is a form of recreational activity which people go out for with their families and friends. These are the kind of picnics, ऐसे करके थोड़ा फॉर्मल फॉर्मेट में चला जाता है। आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग राइट नाउ। यहाँ तक मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज माय स्किल सेट हियर, मेरा यहाँ पे स्किल सेट कहाँ है। कंटेंट राइटर बन जाएंगे, कंटेंट राइटर बन गए, उसके ऊपर भी तो जाना है, तो जाने के लिए पता होना चाहिए कि मेरा स्किल सेट कहाँ है। इसीलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पास ऑफर्स आएंगे, राइट। मेरे से कोई पूछेगा कि हाँ भाई एक रिसर्च रिपोर्ट है कि आप बनाना चाहेंगे, तो क्या मेरा वो स्किल सेट है, तभी तो मैं उसको बोलूंगा हाँ या ना। अगर कोई मुझे बोलेगा एक बुक लिख दीजिए, कोई एक टॉपिक बताओ, कोई बुक लिख दो कि भाई किसी एक टॉपिक पे कह दिया कि बुक लिख दो, सपोज उन्होंने कह दिया कि हाँ भी लैपटॉप्स के ऊपर एक बुक लिख दो। अब मेरा लैपटॉप्स पे कोई स्किल सेट है नहीं है ना, मेरा बुक्स लिखने पे है, चलो लैपटॉप्स पे नहीं है, मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे अपना कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं उस आदमी से बात करूंगा या उस बंदे से बात करूंगा कि हाँ भी मैं काम करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता। तो आप कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल सेट्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ इस चीज में मैं ज्यादा अच्छा हूँ, इस चीज में मेरे को थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, तो मुझे वो कैसे आगे करना है। तो ये सारे फॉर्म ऑफ कंटेंट हैं। अब इसके बाद मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कि भाई पैसा वैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, इज इट अ lucrative प्रोफेशन टू बी इन a content writing, is a lucrative profession to be in or not? It's a very common question. I don't know आप लोगों में से कितने लोगों के माइंड में है, बट काफी लोग मेरे से पूछते हैं। इसका आंसर ये है कि देखिए बिगनिंग के अंदर कंटेंट राइटिंग डज नॉट पे वेरी वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिगिनिंग में कंटेंट राइटिंग एज अ बिगिनर, कंटेंट राइटर्स आर नॉट पेड, आई वुड से एक्सेप्शनली वेल। थिंग्स आर चेंजिंग। आज के अगर मैं 10 साल 15 साल का होराइजन देखूं और आज का देखूं, थिंग्स आर चेंजिंग। पेमेंट्स पहले से बेटर हो रही हैं, बट कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा रहता है, तो थोड़ा सा रहता है। बट वंस यू स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस इन योर वर्क, आप बिगिनर हैं, आप थोड़ा सा पेमेंट का आता है कि यू आर नॉट पेड एक्सेप्शनली वेल, ठीक ठाक रीजनेबल पेमेंट आता है। लेकिन जैसे से आप एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं, जैसे से आप अपने लिंक्स बनाते रहते हैं, और आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एंड यू आर अगेन वही, यहाँ पे भी फिर से वो स्किल सेट वाली बात आ गई कि आपको अपने स्किल सेट पे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आपको फिर आपको अच्छा पेमेंट मिलने लग जाता है। बट जब मैं बिल्कुल एंटर मार रहा हूँ, एंटर मारते मुझे बहुत एक्सेप्शनल नहीं, वैसा नहीं हो रहा है। थोड़ा सा स्ट्रगल का थोड़ा सा हल्का सा टाइम रहता है। आगे चल के इट्स लुक्रेटिव फील्ड, वाई बिकॉज लुक्रेटिव रहती है क्योंकि कंटेंट राइटर्स के बिना जिंदगी है भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप एक अमेजोन खोलो, आपने सपोज खरीदना है, गर्मी आ गई है, आप कह रहे हो एसी लेना है, ठीक है। अगर आप अमेजोन खोलोगे, एसी लेना है, आप देखते हो हाँ भी ये एक एबीसी ब्रांड का एसी है। अब आप क्या करोगे, देखना मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे कि व्हाट विल यू सी, द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू स्क्रॉल डाउन, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा हाँ भाई 3 स्टार एसी, 5 स्टार एसी, हाँ भाई कॉपर क्या कहते हैं उसको, कॉपर वायरिंग है, कॉपर मोटर है, या जो भी है, वो आप डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ेंगे, आपके ध्यान वहां जाएगा ही जाएगा। डिस्क्रिप्शन कौन लिखता है, वो डिस्क्रिप्शन एक कंटेंट राइटर लिखता है। वो एक कंटेंट पर्सन है, कंटेंट का प्रोफेशनल है, जिसने वो डिस्क्रिप्शन लिखी है। आपका ध्यान एक राइट हैंड साइड पे एक वीडियो सी, राइट या लेफ्ट में जहां पे भी होता है वहां पे एक वीडियो सी आ जाती है आजकल, एक वीडियो से में जाएगा। यहाँ पे एक वीडियो यूट्यूब पे जाके देखेंगे, हाँ जी विच एसी टू बाय, वो जो वीडियो आएगी वो क्या है, वो भी तो कंटेंट है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम न्यूज खोल के पढ़ते हैं, वो भी कंटेंट है। हमारी डेली जो दिनचर्या है, हम एक आपने आपको एक ईमेल आया कि फिक्सेड फाउंडेशन इज डूइंग वेबिनार, वो भी तो एक कंटेंट का पार्ट है, वो भी तो कंटेंट है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं भी तो एक कंटेंट ही आपको दे रहा हूँ जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। सो कंटेंट का अपना एक सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा। तो अगर आप वहां पे, अगर आप उस लेवल पे स्कोप देखेंगे तो स्कोप इज ट्रिमेंडस, बहुत ज्यादा स्कोप है। और आगे चल के विद टाइम द डिमांड इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज। जैसा मैंने पहले कहा
कि जब वो बिल गेट्स ने वो जो बोला था कंटेंट इज द किंग, वो बोला था 90s में। वो 90s में हम छोटे छोटे बच्चे थे, पैदा भी नहीं हुए थे शायद, तब बिल गेट्स ने कहा था कि कंटेंट इज द किंग। और आज आप देखो कि आप हमारा कोई भी काम बिना कंटेंट के नहीं होता है। एनी ईमेल दैट वी रीड इज कंटेंट। एनी, आपने देखा कि हाँ भाई मेम आया है, वो मेम क्या है? मेम इज आल्सो कंटेंट। आपने एक वीडियो 2-4 मिनट की देख ली, वो भी एक कंटेंट है। आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप अगर आप कुछ प्राइम वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ, वो भी कंटेंट है। हर चीज कंटेंट के ऊपर है आज की डेट में। तो आपका जो स्कोप है वो ट्रिमेंडस है। व्हाट यू नीड इज दैट टू रिफाइन योर स्किल सेट। अपना स्किल सेट आइडेंटिफाई करना है, उसको रिफाइन करना है, उसमें कॉन्फिडेंस लेके आना है। और वो वो कहते हैं ना, एक स्किल्ड वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट है खासकर कंटेंट फील्ड में, वो बहुत ज्यादा है। मैं इसके बाद आ रहा हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर, मैं 2 मिनट बात करूंगा टेक्निकल राइटिंग के ऊपर। एक और फील्ड आता है जहां पे आप लोगों को आएगा कि टेक्निकल राइटिंग में क्या आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। टेक्निकल राइटिंग का भी एक बहुत बड़ा एक वास्ट फील्ड है। जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया वगैरह का है, वैसे टेक्निकल राइटिंग का भी है। उसके लिए एक अलग ही स्किल सेट होता है। वाई? बिकॉज टेक्निकल राइटिंग इज बेसिकली जो कि हमारे आईटी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रिलेटिंग जो कंटेंट लिखा जाता है, उसको टेक्निकल राइटिंग कहते हैं। उसके लिए भी बहुत ज्यादा वास्ट स्कोप डिमांड अगेन है। बिकॉज आपको पता ही है, इंडिया में खासकर आप लोग सबको पता होगा कि सॉफ्टवेयर और आईटी का जो सर्विसेज का जो हमारा इंडिया का सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। इंडिया से बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है फॉरेन कंट्रीज में, बाहर होता है, और इंडियन कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। हमने देखा कि 2 साल जो हमारा जो लॉकडाउन रहे हैं, जो कोविड का रहा है, the time that we have seen that the kind of things, डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, उसके लिए भी कंटेंट राइटिंग, जो टेक्निकल राइटर्स की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऑब्वियसली बिकॉज वो लोग डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, कंटेंट की डिस्क्रिप्शन है, फिर सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन है, वो सारा कंटेंट भी उन लोगों के डिमांड में आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक वास्ट फील्ड है। तो प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छा है मेरे को। जैसे अगर आपका क्वेश्चन ये होगा कि हाँ भी क्या ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट हम आते हैं कि चलो भी ठीक है, अभी हाँ भी मेरे को लग रहा है मैं स्किल सेट कर लूंगा, मैंने मुझे लग रहा है हाँ पैसे ठीक ठाक बन जाएंगे। दिस इज अ करियर दैट आई वांट टू स्टार्ट विद। आई वांट टू इन्वेस्ट माय टाइम एंड एनर्जी इन दिस सेक्टर एंड मेक सम मनी आउट ऑफ इट एंड एज वेल एज एंजॉय माय वर्क एज वेल। वो सारा हो गया। अब बताइए कि अब स्टार्ट कैसे करना है। हम रेडी हैं, बिल्कुल एकदम तैयार व्यार होकर बैठ गए हैं। अब कलम हाथ में पकड़ लिया है, अब हम इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, आपने जैसे जैसे आपको पसंद है, आपने अपना फील्ड किया और आपने डिसाइड कर लिया कि हमने स्टार्ट करना है। इसमें आपको सबसे पहले आपको अपना मन थोड़ा बनाना पड़ेगा कि डू आई वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर और डू आई वांट टू टेक इट एज अ फुल टाइम प्रोफेशन इन अ कंपनी। काफी सारी कंपनीज अब खासकर कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं, बट मेनी कंपनीज प्रेफर देयर कंटेंट प्रोफेशनल्स टू बी इन द ऑफिस, बिकॉज कंटेंट की टीम्स को दूसरी टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप एक मार्केटिंग कैंपेन है, मैं एक इवेंट कर रहा हूँ, होली आ रही है, सपोज करो मैं होली फेस्टिवल कर रहा हूँ, एंड आई एम हायरिंग समवन टू राइट ऑल द कंटेंट फॉर द होली। ठीक है, होली फेस्टिवल है, मैंने एक एग्जीबिशन रखी हुई है, उसके लिए कंटेंट लिखना है। तो मैंने एक राइटर को रखना है, राइटर आके वहां पे लिखेगी, एड लिखेगा, एड बनाएगा कि ओके होली मेला ऑन दिस डेट, और उसका वो जो पॉइंटर्स होंगे, फीचर होंगे, या उसका एडवांटेज जो भी है, प्रपोजल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्रपोजल लिखवाना है जो कि मुझे किसी को भेजना है कि भाई आप मेरे होली फेस्टिवल में एक स्टॉल लगाने आ जाओ, तो मुझे आपको एक प्रपोजल भेजना पड़ेगा, एक ईमेल भेजना पड़ेगा। तो मेरे को होता है कि हाँ भी, वो कई कई कंपनीज को होता है कि वो जो कंटेंट प्रोफेशनल है वो मेरे ऑफिस में ही रहे, सॉरी, वो मेरे ऑफिस में ही रहे और हमारी टीम के साथ वो डिस्कस कर सके कि क्या क्या लिखवाना है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है कि वो वर्क फ्रॉम होम कई कंपनीज में मिल रहा है, कई कंपनीज में नहीं मिल रहा है। फुल टाइम काम करना है कि फ्रीलांस काम करना है। जब कोविड नहीं भी हुआ था, उससे पहले भी
वन ऑफ द लार्जेस्ट गिग इकोनॉमीज, जो फ्रीलांस इकोनॉमीज होती हैं, वो सबसे बड़ी कंटेंट राइटिंग ही थी। कंटेंट फॉर्म्ड बल्क ऑफ फ्रीलांस वर्क्स, जो काम लोग बाहर से फ्रीलांसर से करवाते थे। तो फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज आज की नहीं, 10-15 साल पुरानी है। बहुत ज्यादा लोग फ्रीलांस काम करते हैं। कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट पे हायर मतलब अपना काम आउटसोर्स करती हैं फ्रीलांसर्स को, फ्रीलांसर्स वो कंटेंट लिख के भेज देते हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं फ्रीलांस जाना चाहता हूँ कि मैं फुल टाइम जॉब। अगर मैं फुल टाइम जॉब करना चाहता हूँ, naukri.com और लिंक्डइन जॉब्स में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं। अगर मैं आज 2022 की बात कर रहा हूँ, इस वक्त अप्रैल से लेके मई तक काफी ज्यादा हायरिंग की एक्सपेक्टेशंस हैं फुल टाइम जॉब्स के लिए। अगर आप कह रहे हो कि नहीं, मेरे को फ्रीलांस करना है, आई वांट टू बी द माय ओन बॉस, मुझे अपना टाइम सेट करना है, फ्रीलांस इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू डू, मेरा रिकमेंडेशन ये हमेशा हर किसी को रहता है कि देखिए, अगर आप बिगिनिंग कर रहे हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं मेरा अपना करियर, पहले थोड़ा टाइम फुल टाइम जॉब कर लो। उससे ये हो जाता है कि बंदे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, थोड़ा आपको एक कंफर्ट लेवल आ जाता है कि हाँ, मेरे को काम समझ में आ गया है, आई नो हाउ टू गो विद द फ्लो। तो वो आपको एक समझ में आ जाता है, राइट, वो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद फ्रीलांस करोगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। बट कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमने स्टार्ट ही फ्रीलांस से करना है। फ्रीलांस में जो मेरा चैलेंज रहता है वो यही रहेगा कि क्लाइंट ढूंढ के खुद लेके आने हैं, और काम जो पे है वो फिक्स नहीं होता है। हर प्रोजेक्ट का पेमेंट डिफरेंट होता है। अगर सपोज करो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है 10 आर्टिकल्स ऑन दिस टॉपिक, तो उसका पेमेंट अलग होगा। फिर बाद में कोई और क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा, कोई और प्रोजेक्ट आएगा तो उसका फिर अलग पेमेंट का सिस्टम बनेगा। पेमेंट टर्म्स सबके डिफरेंट होते हैं, और वो आपको डिफरेंट जैसे जैसे आपका नेगोशिएशन होगा क्लाइंट के साथ। तो वही मैंने कहा कि अगर थोड़ा बंदा, थोड़ा जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होता है, वो थोड़ा सा इसको समझ लेता है, नेगोशिएट करना कैसे करना है, कितना चार्ज करना है, इसमें ये हमेशा एक वो रहता है, राइट। मेरे को देखना पड़ेगा कि मुझे, क्योंकि चार्ज मुझे करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, मैं इतना भी ना मांग लूं कि भाई वो क्लाइंट ही भाग जाए, मैं इतना भी कम ना मांगू कि भाई मेरे भाई रोटी पानी का खर्चा भी ना निकले, इतना कम भी ना लूं। तो मैं मतलब किस नजर से प्राइस करना है, तो मेरे को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। तो ये चैलेंज मेरे लिए एक रहता है एज अ फ्रीलांस, अगर मैं चलता कंटेंट करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ्रीलांस में क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी टीम, जो जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर होगा, उसके साथ टाई अप कर लेते हैं कि भाई तुम अपना थोड़ा काम मेरे को, मेरी टीम, अपनी टीम में मुझे रख लो, और आपके पास जैसे जैसे काम आएगा थोड़ा सा मेरे को दे देना, तो मैं साथ में उसके साथ। सो यू विल हैव टू लुक आउट फॉर दोस काइंड ऑफ पीपल हु आर फ्रीलांस, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फ्रीलांसर्स, और मैं उनके साथ अटैच हो जाऊं। और अटैच होके अगर उसके बाद सपोज करो 10 आर्टिकल का काम आया, तो 2-3 भाई मेरे को दे दियो, थोड़े पैसे का वो जो भी आपका पेमेंट का है हम अपना आपस में कर लेंगे। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आती है। पर मेरा ये रहता है कि अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं, इफ यू आर स्टार्टिंग कंटेंट राइटिंग, तो आप एक बार फुल टाइम जॉब करें। अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस मिलता है तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे एडवांटेज क्या रहता है वर्क फ्रॉम ऑफिस में, अगर आप करेंगे तो आपका एक स्टार्टिंग में आपका एक डिसिप्लिन बन जाएगा, एक आपको समझ आ जाएगी, और बाद में फिर आप अपना जैसे जैसे करियर बंदा थोड़ा आ जाता है कि हाँ नहीं मैं संभाल लूंगा, तो फिर बंदा फ्रीलांस कर सकता है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को फ्रीलांस जाना है कि मुझे फुल टाइम जाना है। फ्रीलांस के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल पे सर्च करेंगे कि आई वांट टू डू फ्रीलांस आर्टिकल्स, नौकरी और लिंक्डइन पे भी फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज आती हैं। नौकरी और लिंक्डइन पे भी फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज आती हैं। एक वेबसाइट है अपवर्क करके, उस पे भी आती हैं। एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, उस पे भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सो अगेन यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। उसमें आपको क्लाइंट्स करने पड़ेंगे, उनको रिटेन करना है, और उनको काम पे उनको अपने जो भी अपना काम है डेडलाइंस के साथ देना है। कंटेंट राइटर्स के लिए डेडलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हर एक काम, जो भी हम काम पकड़ते हैं, जो भी काम हमें देना है, हमें डेडलाइंस के साथ देना होता है। सो डेडलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपनी डेडलाइंस मेंटेन करके रखनी है, चाहे वो हम फ्रीलांसर हैं, चाहे वो हम अपना एज अ फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। तो डेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें उनके ऊपर भी नेगोशिएट करना पड़ सकता है। बिकॉज जब आप क्लाइंट से काम लेते हैं, जैसे मैं ऑफिस में भी अगर काम कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई काम मिला है, तो अगर वो
बंदा बोलेगा नहीं मुझे आज शाम को दे दो, और मुझे पता है आज शाम तक नहीं हो सकता है कल, तो उसको मुझे ठीक से उसको बताना पड़ेगा कि ओके दिस इज द डेडलाइन दैट यू आर गिविंग मी, दिस इज द डेडलाइन बाय विच आई कैन सबमिट यू द वर्क, तो वो हमें बताना पड़ेगा। इसके बाद आप अपना कंटेंट का जो करियर है वो शुरू कर सकते हैं, उसको आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इसमें 2-3 बातें और आ जाती हैं कि भाई अब मैं बढ़ गया हूँ, कंटेंट राइटर बन गया हूँ, अब बताइए कि कुछ टिप्स वगैरह बताइए कि अच्छा कंटेंट में कैसे लिखूंगा, कैसे उसके अंदर आगे बढ़ूंगा। बेसिक स्किल्स मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि योर कंटेंट शुड बी, ग्रामर का जो आपका है वो पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। योर द ग्रामर दैट यू आर राइटिंग, the application of grammar should be you should be very particular about it, because जो हम कंटेंट लिख रहे हैं इट इज फॉर मास कंजम्पशन। मान के चलिए एक आपने आर्टिकल लिखा, वो आपकी कंपनी के वेबसाइट पे पब्लिश हो गया, कंपनी के अंदर आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं 300 से 500 बंदा, मान लेते हैं एग्जांपल ले लिया मैंने, 300-500 बंदा काम, 300-500 बंदा में कोई सीईओ भी होगा, कोई सीईओ होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई कुछ होगा। कोई बंदा भी आके वो कंटेंट पढ़ रहा है और आके आप बोल सकते हैं कि व्हाट इज दिस, वो करेक्ट करो, उसको ठीक करो। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो भी कंटेंट है वो मास कंजम्पशन के लिए है, वो कहीं ना कहीं पे पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, वो पब्लिक कंज्यूम कर रही है। तो कोई भी कह सकता है राइट, कोई आप मूवी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने जाते हैं, आप कह ही देते हैं यार पिक्चर में लॉजिक ही नहीं था, ऐसे थोड़ी ना कभी होता है, स्टोरी में दम ही नहीं था। क्यों नहीं था दम जी? वो स्टोरी का लॉजिक ही ठीक नहीं था जी, प्लॉट ठीक नहीं था, वो स्टोरी ठीक नहीं थी। तो ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि हमारा ग्रामर सही रहे। दूसरी चीज जो मैं स्टोरी की बात कर रहा हूँ, मूवी की, वो इससे लिंक्ड है कि फैक्ट्स करेक्ट होने चाहिए। तो एज अ कंटेंट राइटर, ए योर ग्रामर शुड बी वेरी गुड, बी योर फैक्ट्स शुड बी वेरी करेक्ट। आप फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ पे आके कुछ और बोल दूं और फैक्ट कुछ और हो तो उससे आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल की बात है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इंडिया के इंडिपेंडेंस के ऊपर, मैं वहां पे लिख रहा हूँ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1940। आपको पता है कि वो 47 है, पर मैंने फैक्ट चेक किया ही नहीं, मैंने 40 लिख के पेल दिया कंटेंट, मैंने भेज दिया आगे, मैंने कर ठीक है जी। अब वही बात है, मास कंजम्पशन की बात है, 500 100-200 बंदों ने मेरा आर्टिकल पढ़ लिया, मान लो उन्होंने पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस डे पे, इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है तुषार मंगल ने, उस पर लिखा है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट 1940। आप हो गए यार बंदा ही पागल है, इसको आता जाता कुछ है नहीं, छड़ यार, छोड़ो इसको, ये बंदा ठीक नहीं, इसका कंटेंट में दम नहीं। वो मेरी क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करता है। लोग बोलेंगे अलग बात है, क्लाइंट कल को अगर अगर क्लाइंट ने गलती पकड़ ली तो क्लाइंट बाद में बोलेगा, वो अलग बात है, बॉस पकड़ेगा तो अलग बात है। तो हमारे को जो हमारे फैक्ट्स हैं वो बहुत करेक्ट होने चाहिए। हमें जब भी हम कोई फैक्ट, जो चीजें हमें नहीं पता होती हैं, उनके हमें 2-3 जगह से फैक्ट चेक कोरिलेट करने चाहिए। हम दो, अगर हमें नहीं श्योर है तो हम 2-3 जगह से चेक करें और उसके बाद उसको अपने कंटेंट में लिखें। ग्रामर हमारा ठीक होना चाहिए। हमारी लैंग्वेज, अब लैंग्वेज की बात मैं बताता हूँ आपको। लैंग्वेज जब अब कंटेंट लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, कई लोगों को लगता है कि नहीं यार फैंसी फैंसी वर्ड लिखकर, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज लिखकर कंटेंट राइटर बनते हैं, ऐसा नहीं होता है। योर कंटेंट शुड बी वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और समझ में आना चाहिए। मैं चाहूँ तो बहुत ज्यादा फैंसी लैंग्वेज में भी आपको यही कंटेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपको इतनी फैंसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये सारी बातें। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी अपनी, मेरे को समझ नहीं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी लैंग्वेज। बट मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। हर कोई थोड़ी ना कोई, मैं ये मान के नहीं चल सकता कि हर कोई बहुत ज्यादा हाईफाई इंग्लिश पसंद करता है। जो हाईफाई इंग्लिश समझ में भी आती है जिसको, वो भी नहीं हाईफाई इंग्लिश पसंद करता, क्योंकि हर कोई सिंपल चाहता है। हर चीज सिंपल, सिंपल चीजें ज्यादा हमेशा लोगों को पसंद आती हैं, समझ में आती है, और कंजम्पशन भी उसकी इजी रहती है। तो आपको जो भी आपकी लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए। जब तक आप अपनी लैंग्वेज सिंपल रखेंगे, अपना फैक्ट्स ठीक रखेंगे, आप कुछ अच्छा देंगे, अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे, तो आगे उसकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। कंजम्पशन का मतलब होता है कि वो रीडरशिप जो है उसकी राइटिंग का, वो जो बढ़ेगा। इसके अलावा एक बात आती है कंटेंट को, मतलब मैं और मेरा कंटेंट बेटर कैसे हो सकता है ताकि भाई कल को हमारा काम भी अच्छा चले, प्रोफेशन में भी हेल्प हो। इसमें बहुत जरूरी बात है रीड
रीड, बहुत सारा कुछ रीड करो, जिस चीज के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ो, अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी लेके आओ कि मुझे पढ़ना है, मुझे रीड करना है, मुझे रीड करना है, बहुत सारा रीड करो। जो लोग उस टॉपिक के बारे में लिखते हैं उनका बहुत सारा कंटेंट पढ़ो। फॉर एग्जांपल मेरे को लिखना है, अभी मेरे को आप बोलो कि सर 500 वर्ड में लिखो कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, मुझे क्या पता भाई यूक्रेन कहाँ पे है, सिंपल सी बात, नहीं पता कहाँ पे है। मुझे क्या पता दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। हम तो एक दिन सुबह उठे, पता लगा कि भाई रूस ने उस पर हमला कर दिया है और आपस में युद्ध हो गया है, हमें क्या पता चीजों का। और ये कंटेंट राइटर्स का होता है, देखिए इट्स अ चैलेंज दैट एवरी कंटेंट राइटर इज गोइंग टू फेस। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे आते हैं जिनके बारे में नहीं पता है। मेरे को क्या पता यूक्रेन कहाँ पे क्यों आपस में लड़ रहे हैं, भाई हो गया होगा झगड़ा आपस में। हम जहाँ पे रहते हैं हमारे इंडिया में तो आप लोगों को सबको ही पता होगा कि पड़ोसियों के बीच में वैसे ही झगड़े होते रहते हैं। दो पड़ोसी होते हैं आपस में, एक दीवारें आसपास लगी होती हैं, कोई ना किसी का झगड़ा होता रहता है, उसमें हमें हैपेंस ऑल द टाइम। अब पता नहीं क्या झगड़ा है आपस में। तो यहाँ पे कहाँ पे मतलब हाउ डू आई राइट अ गुड कंटेंट अबाउट, ठीक है। तो ये चैलेंज रहेगा हमारे लिए चैलेंज आता तो जैसा मैंने कहा हमारी ग्रामर, जब मैं लिखूंगा अगर कुछ इस पे सपोज करो 400-500 वर्ड, तो हाँ मेरी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने जैसा कहा कि सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर मैं बहुत फैंसी लैंग्वेज लिखूंगा, अब आपको तो पहले ही नहीं, अब हम जैसे इंडिया में हैं हमें वैसे ही नहीं पता यूक्रेन और उसका क्या झगड़ा है, तो अगर मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखूंगा तो वैसे ही आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या कहना चाह रहे हो, आप सीधा यू विल बी लाइक भाई कहना क्या चाह रहे हो। तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। तीसरी चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आई रीड, अगर मैं 5-10 जगह से पढ़ूंगा, 15-20 जगह से थोड़ा समझूंगा, तो मुझे थोड़ा समझ में भी आएगा, अच्छा ये बात होगी। फिर मुझे फैक्ट्स क्लियर होंगे, जो मैंने बात करी फैक्ट्स चेक, मुझे फैक्ट्स क्लियर होंगे, अच्छा ये फैक्ट्स ऑफ द मैटर है। मुझे जब मैं बहुत सारा रीड करूंगा ना तो मुझे समझ में आएगा कि अच्छा इन लोगों ने, उसमें क्या है कि जब मैं 10-15 जगह से पढ़ रहा हूँ ना, 10-15 जगह से 2-3 जगहों में देखूंगा यार इस राइटर ने ना आर्टिकल का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बनाया है, इसने ठीक से लिखा है, इसने पहले शुरू ऐसे किया, फिर इसने ऐसे बताया, फिर ये ऐसे किया, फिर इसने कंक्लूड ऐसे किया। मेरे को भी आइडियाज आएंगे, हाँ मैं भी ऐसे लिख सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो प्लान माई आर्टिकल इन दिस वे, मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ ये हो सकता है, आई कैन ऑल्सो वर्क ऑन दैट। तो मुझे और आइडियाज भी आते हैं। एक और होता है कि जब मैं बहुत ज्यादा रीड करूंगा ना तो मेरा लैंग्वेज में पकड़ भी बनता है, क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों को कि लोग कैसे लिख रहे हैं, लैंग्वेज कैसा आ रहा है, मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ, अच्छा दिस इज द वे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं, आप कंटेंट अपना बेसिक शुरू करो। टाइम बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। आई एम नाउ गोइंग टू ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। आप लोगों के पास जो जो सवाल हैं कंटेंट राइटिंग को लेकर या बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग को लेकर, आप प्लीज शेयर करो। मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के हैं मैं उनको आंसर करूं। जो जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है आप प्लीज शेयर कीजिए। वेरी नाइस। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, कहीं ये तो नहीं कि सब सो गए हैं। एनीवन? अविनाश ने हाथ खड़ा किया है, यस अविनाश, आई 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 कैन सी, आई थिंक यू आर रेजिंग योर हैंड, if you can unmute yourself. Yeah, hello, sir. Hi. Is there Avinash? Sir, I want to know that uh, I am new at content writing field. Okay. So I want to know that where and how can I start to write a good content? अविनाश, जैसा मैंने आपको बताया, like I said, first thing is that you can apply as a freelancer on all these sites जो मैंने आपको बताई, Upwork, Freelancer, and you can start there. Second, मैंने आपको बताया कि आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो, that you can apply for, there are lot of vacancies which are coming up. एक और चीज मैं इसमें अविनाश एक और चीज ऐड करूंगा कि what you should do is, because you are just new to the field, right? अभी आप न्यू हो, आपके पास बहुत ज्यादा काम नहीं आपने किया है, and you are not very experienced about these things.
आप अपना कोई ब्लॉग या अपना कोई चैनल एस्टैब्लिश करो Yes, sir. Yes. फॉर योर पर्सनल है भाई, मेरा ये पर्सनल है, मैं इसमें अपना जो मेरा मन करेगा मैं वो लिखूंगा। आई लाइक टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, मैं खाली स्पोर्ट्स के बारे में लिखूंगा। उससे 2-3 बातें होंगी। एक, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट? एक कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है जब आप अपने लिए भी लिख रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा है। सेकंड, जो चीजें मैंने आपको बताई कि सिंपल रखो, फैक्ट रखो, ये रखो, ये तो आप ये सब चीजें अप्लाई करोगे और एक्सपेरिमेंटेशन अपने ब्लॉग पे करोगे, अपने कंटेंट पे करोगे। Yes. तीसरा इसमें फायदा होगा कि कल को अगर मैं आके बोल लूं कि मेरे को अविनाश से कंटेंट लिखवाना है, बट मुझे लग नहीं रहा कि अविनाश लिख पाएगा, आई डोंट थिंक सो, तो अविनाश एकदम से क्या करता है, अपना ब्लॉग निकाल के लाएगा, मेरे को दिया, देखो सर मैंने ये सब ब्लॉग अपने लिखे हैं, राइट? सो यू विल हैव सम सैंपल्स विद यू, राइट? बिकॉज हम Yes. नए हैं, क्योंकि हम नए आते हैं तो हम दूसरा बंदा हम पे क्यों ट्रस्ट करेगा। तो ये भी हो जाएगा कि आपका एक सैंपल, एक आपका एक वो सारा का सारा। ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लिख सकते हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई वेबसाइट्स पे भी लिख सकते हो, जैसे मेरा ब्लॉग है तुषारमंगल.com, कई लोग उस पर गेस्ट आर्टिकल लिखते हैं। और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप गेस्ट आर्टिकल्स भी लिख सकते हो। आप अपना कंटेंट कोई चैनल बना सकते हो, अपना ब्लॉग बना सकते हो। आप और भी मीडियम से अपना एक पोर्टफोलियो जिसको बोलते हैं ना, जैसे अपना पोर्टफोलियो होता है, आप एक अपना साथ में पोर्टफोलियो बिल्ड करो ताकि अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो, और साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढते रहो कि हाँ मुझे फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए या मुझे फुल टाइम जॉब मिल जाए, साथ साथ में वो भी ढूंढते रहो। आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, लर्निंग बढ़ेगी और आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, ताकि लोग देखेंगे तो वो होगा। Yes. इसके अलावा एक चीज और माइंड में रखनी है कि अपने लिंक्स बनाते रहो। लिंक्स बहुत जरूरी है। लिंक्स इन द सेंस कि आप जाते हो, किसी का कंटेंट पढ़ते हो, आपको अच्छा लगता है, आप उसको हाय हेलो, उससे काम की बात करो, प्रोफेशनल अपना मेंटेन रखो, लिंक्स बना के रखो, ताकि ट्राई टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंटेंट राइटर्स। कहीं पे आपने देखा कोई लिंक्डइन पे कंटेंट राइटर्स का ग्रुप है, उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, तो लिंक्स और नेटवर्किंग पे थोड़ा ध्यान दो। आपको जरूर अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स भी बनेंगे और आपके कंटेंट में इंप्रूवमेंट भी होगा और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। Thank you, sir. Thank you. मोस्ट वेलकम। एनीथिंग एल्स? I think Tanvi has raised her hand. Yeah, hello Tushar sir, good afternoon. I'm Good friend afternoon. of Komal. So we are into content moderation field. It is All right. belongs to digital marketing only, and we are associated with a company, MNC. But still, we don't have any experience of content writing. So, what you will suggest? Should we start from like blogging and all, or what all you will suggest? So, like you said, this is the content writing you're saying for your company, right? Your company We wants are not to. doing content writing, but we are doing content moderation. Okay. So, so if you are doing, if you want to do content writing, you can again go about it. Like I told Avinash as well, that अपना portfolio बनाना शुरू करो. Start with some work, and if possible, if you are already doing content moderation, try to get hold of someone. कोई एक client मिल जाए, उससे शुरू कर लो, confidence आता है, फिर एक और client, फिर एक और client. Yes, you can start with the content writing as well. जैसा मैंने अविनाश को बोला, अगेन आप लोगों के लिए भी वही जरूरी है, नेटवर्किंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, दोनों चीजें। अगर हो सके तो अपनी कंपनी का ब्लॉग बनाओ, जो कंपनी कंटेंट मॉडरेशन कर रही है ना, उसका भी ब्लॉग बनाओ, ताकि क्लाइंट को दिखाने वाले बनो कि हाँ मैंने कंटेंट लिखा है, देख लो भाई मैंने लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैं सबके, और ये मैं सबको कहूंगा कि बेशक आप कंपनी में नौकरी मिल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना पर्सनल कंटेंट लिखना कभी मत छोड़ो। कीप राइटिंग योर ओन कंटेंट, सब प्लेस कहीं ना कहीं लिखते रहो। कोई लिंक्डइन पे नोट, लिंक्डइन पे ऑप्शन आता है लिंक्डइन नोट का, कोई सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई, कोई लिंक्डइन का पोस्ट हो गया, कोई ब्लॉग हो गया, medium.com करके एक ब्लॉग प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगर करके ब्लॉग प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस करके है। जो आपको अच्छा लग रहा है अपना थोड़ा थोड़ा साथ साथ में पोर्टफोलियो बिल्डअप करते रहो। कुछ नहीं पता होता कब किस तरह का कौन सा क्लाइंट आ जाता है, कुछ आ जाता है, अपना कुछ भी करके अपना काम दिखाने वाला बंदा बनता है। और ऑब्वियसली एक अननोन बंदे को कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, एक जिसका पोर्टफोलियो मुझे दिख रहा है उस पर थोड़ा हो सकता है कि पोर्टफोलियो देख के अगर बंदा मान भी जाए। अगेन थैंक यू तुषार सर।
Anyone else? All right. No, I think not. All right, then if you have any further questions, इसके बाद भी मेरा जो ईमेल एड्रेस आप नोट कर सकते हैं, tusharmangal.com@gmail.com. So tusharmangal.com is what my website name is, or @gmail.com. तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है. मेरा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक सब पे तुषार मंगल, TUSHARMANGL. आप कभी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो. बट मैंने भी जब शुरू किया था, बट घबराना नहीं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला टाइप्स का. There are many challenging times that sometimes comes. यार कंटेंट कैसे लिखेंगे, how will we write this? घबराना नहीं है. कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करना है. अगर लग रहा है कि हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, रीड अ लॉट ऑन दैट सब्जेक्ट. अगर मुझे लग रहा है कि मैं ये वाला कंटेंट नहीं लिख पाऊंगा, रीड अ लॉट. आजकल तो इतना रिसोर्स अवेलेबल है, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, यूट्यूब पे वीडियो, सब कुछ अवेलेबल है. घबराना नहीं है. दूसरी बात, पेशेंस रखनी है. हैव सम पेशेंस. टाइम थोड़ा लग जाएगा, लेकिन यू विल गेट देयर. बी कॉन्फिडेंट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. अगेन, स्काई इज द लिमिट. बहुत ज्यादा स्कोप है कंटेंट राइटिंग का. आपके ऊपर है, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर रहे हो, एंड हाउ आर यू मैक्सिमाइजिंग ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज. बहुत ज्यादा है. मार्केटिंग कैन नॉट रन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग बिजनेसेस कैन नॉट रन विदाउट कंटेंट. कंटेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है. वी नीड गुड कंटेंट राइटर्स, वी नीड गुड कंटेंट. हम सबको चाहिए होता है, राइट? हम सबको चाहिए. वी नीड गुड कंटेंट, और कंटेंट राइटर्स की रिक्वायरमेंट है. आप लोग उस पे यू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज, इंप्रूव योर स्किल सेट, कीप वर्किंग ऑन योर स्किल सेट, और उस पर करते रहो. ओवर टू यू कोमल, आई गेस. Thank you, sir. Thank you so much for this valuable information. Your guidance on these topics really help us to understand the different types of content, how it is will be used, difference between the blog and articles, what is actually a content moderation and content writing. So hope you guys all enjoyed these sessions. Thank you so much, Komal. Thank you, Fixate, and thank you everyone for joining in today. And I hope everyone enjoyed this. Yeah, thank you so much. To get updates on these sessions or any other Fixate sessions, I will share all the social media channel of the Fixate so that you can follow that channels and get the updates on that. Thank you all. Stay tuned.